Hello students, I am Dr. Priyanka and we are going to start with the several methods of contraception in reproductive health that we have started in the last session. So there are several methods of contraception we have talked, that is natural और artificial. नेचुरल में आर्टिफिशियल्स में बच्चे आपके कॉन्डम्स वगैरह, कॉन्डम्स, सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, IUDs, ठीक है, ये सारे मेथड्स आ जाते हैं आपके. एंड नेचुरल मेथड्स में आपके या ट्रेडिशनल मेथड्स में आ जाते हैं. then the couple will going to calculate the fertilization and the sexual ovulation. ठीक है, ovulation होने के बाद sexual intercourse or the coitus period will be helpful so that minimizing the chances of pregnancy. Minimizing pregnancy rate. Okay, और condoms, surgical methods, IUD, vasectomy, tubectomy, IUDs and all that stuff, ये सारे बच्चे आपके आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं. इनमें आप ओरल पिल्स भी ले सकते हैं. आई पिल्स वगैरह के मास मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स बहुत होते हैं लोकल पीपल को अवेयर करने के लिए. ओके, अब हम उनमें से कुछ में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कपल प्रोटेक्शन. कपल प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो कपल प्रोटेक्शन में आप बच्चे लिख सकते हो कि हाउ द कपल विल गोइंग टू प्रोटेक्ट द सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि कैसे टू कपल्स विल गोइंग आर द एलिजिबल टू मेंटेन द सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. लाइक you will going to see process of bringing eligible couples under family planning measures. ठीक है, कपल्स को अवेयर करना कि हाउ दे आर गोइंग टू यूज द टेक्निक्स एंड द स्ट्रैटेजीज दे वांट टू अडॉप्ट so that the safe intercourse, ताकि the processes called the ovulation, the processes called the fertilization, के जो periods हैं वो ना हो पाए and still and despite of the fact they are going to enjoy the sexual life too. क्योंकि human beings में ऐसा तो कोई period नहीं होता है that there the specific sexual life period and the fertile life period. The overall lifespan of the male and around the 50, 55, 60 years of lifespan of females are the sexually active lifespan. तो अब कपल प्रोटेक्शन में हम लोग या तो आर्टिफिशियल बैरियर्स को यूज करते हैं या फिर एक फैमिली प्लानिंग मेजर यूज करते हैं नेचुरल ट्रेडिशन मेथड्स में. ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की. अब नेचुरल मेथड्स में बच्चे आपके आते हैं, these are methods which do not require any device, medicine or religion sanction. ठीक है, मतलब कि क्या होता है, अब अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो मुस्लिम्स के रिलीजियस सैंक्शंस अपनी बॉडी पे हम लोग ये नहीं कराएंगे, अपनी बॉडी पे हम लोग वो नहीं कराएंगे. सो द पीपल इन द इंडिया आर मोर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि ऐसी बैकवर्डनेस थिंकिंग को वो प्रोवोक करते हैं कि दे आर नॉट अडॉप्टिंग दीज मेथड्स. So there are the three kinds of sexual natural methods adopted for the couple protection, that is
periodic abstinence, the withdrawal method, lactation method. Okay, lactation method. So these are some of the four these are some of the four natural methods. अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं withdrawal method की, तो withdrawal method में बच्चे क्या होता है कि during the time of sexual intercourse, जैसे ही the semen is about to release in the female vagina, the male withdraws that semen in the in the vagina. तो withdrawal method में बच्चे आप ये लिख सकते हैं that the semen will not be released in the female's vagina during the sexual intercourse, so that the sperms will not enter in the female cervix and the sperms will fall outside the body. ठीक है, अगर मैं लैक्टेशन की बात करती हूँ तो लैक्टेशन में बच्चे क्या होता है, ड्यूरिंग द फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लैक्टेशन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, because of the pregnancy, because of the progesterone hormone levels are very high during the lactation and estrogens are to lactation, तो basically they will be estrogen level बहुत ज्यादा हाई होते हैं और प्रोजेस्टेरॉन लेवल इतने हाई नहीं होते हैं बच्चे, तो उसके कारण से क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो टूटता है। ठीक है, उसके इस वजह से प्रेगनेंसी इन द केस नहीं आ रही होती। तो हम लोगों को कपल्स को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए दैट द फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और ड्यूरिंग द लैक्टेशन टाइम देयर आर मिनिमल चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ पीरियड एब्स्टिनेंस, तो बच्चे वो क्या होता है, वो एज अ काउंसलिंग हम लोग एज बीइंग एज अ डॉक्टर काउंसलिंग हम लोग लोगों को करते हैं, लाइक 14th डे menstrual cycle of females are there। ठीक है, 14th day menstrual cycles, not menstrual cycle, 14th day ovulation is there। ओके, ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, जो फीमेल्स का एग होता है, जो फीमेल्स का ओवम होता है, वो 14th डे रिलीज होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके डे से 14वें दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है एंड द एग विल बी रिलीज फ्रॉम ईच ऑफ द ओवरी फॉर फर्टिलाइजेशन इन एम्पुला इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, अब 14 दिन से अराउंड 5 से 6 दिन मोस्ट फर्टाइल पीरियड्स रहते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी हाई होता है, एंड टू अवॉइड these 4 to 5 days of pregnant, these 4 to 5 days जिसमें आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, या अगर करें तो एक स्पेसिफिक डिवाइस लगा के, आर्टिफिशियल डिवाइस या बैरियर्स लगा के यूज करें एंड go for the sexual intercourse in the coitus period after those 5 to 6 days around the 20th days of the females, so that कि pregnancy के उन दौरान chances नहीं होते हैं। ठीक है, so these are the periodic balance कि जो हम लोग डॉक्टर मानते हैं, it is represented in the specific graph and you're going to show it like a tabular graph too। ठीक है, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 and so on। ठीक है, तो बच्चे अब पता है कि 0 से 4 दिन मेंसेस रही, मेंसेस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पीरियोडिक था, उसके अब 14वें दिन पर 14th से 14वें दिन से, ठीक है, 14वें दिन से 16वें दिन तक ओव्यूलेशन रहेगा, 2 से 4 दिन तक। ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, अगर इन 2 से 4 दिनों में फर्टिलाइजेशन हो गई, और सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड्स भी कह सकते हो मंथ के आफ्टर, ठीक है, अगर हो गई तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और प्रेगनेंसी 9 months 7 days की मानी जाती है।
ठीक है, इन 14 से 16 दिनों के बीच में। लेकिन अगर नहीं हुए तो प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस बाय कॉर्पस ल्यूटियम और फिर 2 से 4 तारीख तक, ये इन सारे टाइम पे मतलब 16 से या 18 से 0 तारीख तक अगेन महीने की साइकिल में मेंस्ट्रुअल बॉडी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रिपेयर होगी। मतलब ये आपके इनफर्टाइल पीरियड होंगे। इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर फीमेल नॉर्मली अपनी मेंसेस को हैव कर रही है, उसकी नॉर्मली मेंसेस हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, तो ये साइकिल ऐसे ही चलेगा। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ 14 से 16 या 18 तारीख जो फीमेल्स के फर्टाइल पीरियड होते हैं, जिसमें एक मिनिमम ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये 2-4 दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स को ना करना, प्रोवोक ना करना, और इफ दे आर प्लानिंग टू हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स देन avoid the sexual intercourse by adopting the following measures of the various like use of condoms या oral pills etc etc। ठीक है, so these are the calculative balance कि how you're going to adopt। ठीक है, अब ड्यूरिंग द एक चीज हो सकती है इसमें कि ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड में जो सर्विक्स होती है, विजाइना सर्विक्स होती है, वो एक्स्ट्रा स्लिपरी हो जाती है, एक्स्ट्रा इलास्टिक हो जाती है, एंड ड्रॉन इनटू अ थ्रेड। ठीक है, क्या होता है, एक्स्ट्रा स्लिपरी होने के कारण एंड हार्मोनल balance is also increased when stretched between 2 fingers period right। अब क्या होता है बच्चे, अब how you are going to notice कि आपका ओव्यूलेशन हो गया है, how you are going to notice कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। उसमें क्या होता है बच्चे कि जब ओव्यूलेशन हो चुका होता है या ओव्यूलेशन डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है या ओवम डीजेनरेट करने लगता है, तब क्या होता है कि वाइट डिस्चार्ज निकलता है फीमेल्स की सर्विक्स में, वो पेलिश येलो कलर का होता है। एंड फीमेल्स कैन चेक दिस थ्रू बाय दिस टेस्ट कि अपनी फीमेल विजाइना में 2 फिंगर्स डाल के शी कैन टेस्ट this by the symbiotic test। It is also called the symbiotic test, and with the test they are able to realize कि during the periods of 14 to 16 day 14 से 16 दिन 18 दिन तक 2 से 4 दिन का पीरियड जो ये होता है, यहाँ ये बहुत स्लिपरी होता है। ठीक है, और आफ्टर द डिजेनरेशन ऑफ ओवम ये जो सर्विक्स होती है फीमेल की, ये बहुत खुरदरी सी फ्रिक्शनेटेड हो जाती है ड्यू टू द हैवी पेलिश वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द विजाइना। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ और सारे मेथड्स के बारे में, ठीक है, वो मेथड्स हो सकते हैं विड्रॉल मेथड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्वाइटस इंटरप्शंस में आ जाते हैं ये मेथड की से अराउंड बिफोर जस्ट एग्जैक्टली द फीमेल इज गोइंग टू बी एजैकुलेटेड इन द फीमेल सर्विक्स ऑफ विजाइना, विड्रॉल बाय द मेल इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स, लैक्टेशनल अमोनिया, इसका मतलब होता है लैक्टेशन के दौरान ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होता है और इस फेज में प्रेगनेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से मिल्क इजेक्शन कम हो जाएगी। और फिलहाल आफ्टर द पार्चुरेशन मदर्स की बॉडी, मैटरनल बॉडी विल गोइंग टू हैव कि 1 साल तक मिल्क इजेक्शन हो मदर्स की ब्रेस्ट तक, इसीलिए ईस्ट्रोजन लेवल हाई रहते हैं, इसीलिए द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज मिनिमम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में सबसे पहले आते हैं बच्चे कॉन्डम्स मेथड। अब बैरियर मेथड्स को सबसे पहले वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट मैकेनिकल मेथड्स
या mechanical devices which prevent the deposition of sperms into vagina and their passage into uterus. They can also be self inserted. ओके अपने आप भी सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं आप इन डिवाइसेस को, एंड दे कैन रादर बी सर्जिकल्स, लाइक आपके बहुत सारे मेथड्स हो गए, लाइक कॉन्डम्स कैन बी इजीली इंसर्ट बाय देमसेल्फ, ओके सेल्फ इंसर्टेड बाय यूजर्स, एंड द कॉमन barrier methods are condoms, diaphragm, fem shield मतलब होता है बच्चे फीमेल्स कॉन्डम, ठीक है, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप, ओके सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स। अब कॉन्डम्स बच्चे क्या होते हैं, रबर लेटेक्स के मटेरियल से बने होते हैं, लेट्स डिस्कस इट इन ब्रीफ। कॉन्डम्स tubular latex sheath which is rolled over the male copulatory organ, copulatory मतलब sexual intercourse organ, during sex। अब इसके ऊपर स्पर्माइसाइडल केमिकल यूज हुआ होता है, ये स्पर्म्स की वायबिलिटी को स्टॉप कर देता है, डिक्रीज कर देता है। स्पर्म्स विल नॉट डिक्रीज अगर ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इवन अगर स्पर्म्स एंटर हो भी जाते हैं विजाइना के अंदर, तो द केमिकल डिपॉजिटेड ओवर द कॉन्डम्स ये स्पर्म्स की वायबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। स्पर्म्स विल नॉट गोइंग टू लिव एज मच अराउंड 1 आवर और हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे से ज्यादा स्पर्म्स विल नॉट एबल टू लिव, द लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म्स विल बी शॉर्टेड, और ऊपर से ल्यूब्रिकेटिंग मटेरियल या ल्यूब्रिकेटिंग केमिकल भी यूज हुआ होता है, ओके, एंड इट विल बी rubber latex material the deposition of semen is calculated in the pitted point like here, okay, so that the semen will not allowed to enter in the female's cervix or the vagina, ठीक है। बहुत सारे तरीके के कॉन्डम्स आते हैं, पहला अपॉइंटेड वन, दूसरा the cylindrical one, ठीक है। Appointed one has the penis like shape so that it is fitted over the penis of the male, ठीक है, and the दूसरा is the female condom,
फीमेल्स का जो कॉन्डम होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है, उसपे भी स्पर्मेसेटाइल होता है, स्पर्माइसाडाइल केमिकल यूज किया जाता है. इट विल बी होवर ओवर द विजाइना ऑफ द फीमेल्स. ठीक है, सो दैट द एंट्री सर्विक्स के अंदर पूरा चला जाता है. सो द एंट्री सो द इफ द मेल फीमेल्स कॉन्डम्स की इजैकुलेशन हो तो स्पर्म्स की एंट्री ना हो पाए. ठीक है, इनटू द यूट्रस एंड देन द ओवरी. सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप. अब सर्वाइकल कैप्स में बच्चे होता है कि सर्वाइकल कैप्स रबर कैप्स होती हैं जो सर्विक्स में फिट कर दी जाती हैं, सर्विक्स फिटेड. ठीक है, ये भी अवॉइड द एंट्री ऑफ स्पर्म्स ओवर द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉइटस. ठीक है, ठीक है. क्या होता है, एक इसमें खासियत ये होती है सर्वाइकल कैप्स के अंदर कि इट इज डिजाइन्ड टू बी देयर, इट इज डिजाइन्ड टू बी देयर बिफोर सक्शन. जब तक सक्शन नहीं होगी तब तक वो वहीं रहती है. ठीक है, इसमें थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है कि विमेन को इचिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यूट्रस इन्फेक्शंस हो जाते हैं. सो इसका यूज थोड़ा सा मिनिमल है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चे वॉल्ट कैप. हेमिस्फेरिक डोम लाइक रबर और प्लास्टिक की कैप होती है, थिक रिम होती है उसकी, विच इज मेंट over to fit in the surface. Now next is chemical methods. केमिकल मेथड्स में बच्चे आते हैं स्पर्मिसाइडल्स केमिकल्स. अब बच्चे जरूरी नहीं कि ये कॉन्डम के साथ ही आए. ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी अवेलेबल इन द फार्मेसी सेपरेटली इन द फॉर्म्स ऑफ क्रीम्स. Delirium is one of the cream. Then you will have Perspetin, jelly जिसमें spermicidals chemicals होते हैं, वॉलपर पेस्ट जो अगर स्पर्म मेल पेनिस पे अलाउ कर दिया जाएगा ओवर द एरिया, then the sperms will not have that capacity to fertilize the ovum during the sexual intercourse. ठीक है, एक मेथड होता है स्पॉन्ज. टुडे is a foam supporting या foam suppository मतलब कि इस एरिया में स्पर्म्स का these can be used by females कि suppository है, females अपनी vagina में रख लेती हैं. In the same manner, if the infection causes, they can be added in the female cervix ताकि अगर sexual intercourse के कारण sperms enter भी हो जाए, the viability will be decreased by suppositories. ठीक है, a tablet containing spermicidal nonoxynol 9 is a spermicide, is one of the spermicide.
don't need to remember, but if you remember, you'll fetch the good marks over here. ठीक है, this is an example. Now next talk about intrauterine devices. Copper T's and all that stuff. IUDs. IUDs में हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे कॉन्डम्स वगैरह का नेसेसिटी नहीं होती है. These are somehow the surgical methods which can be done. These IUDs are like copper T and all that. ये क्या करते हैं बच्चे, ये फीमेल्स की यूट्रस में इंसर्ट कर दी जाती हैं सर्विक्स में, और उस दौरान पे अगर स्पर्म्स की एंट्री होती है तो कॉपर टी नाम इसलिए आया क्योंकि कॉपर जो मेटल होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है, Cu+2 आयंस निकलते हैं सर्विक्स के अंदर, जो कि सर्विक्स का और यूट्रस का जो पीएच बैलेंस है, ठीक है, एसिडिक बैलेंस है, वो मेंटेन करता रहता है. और जैसे ही हाई रखता है थोड़ा सा, जो कि स्पर्म्स का वायबिलिटी पीरियड डिक्रीज करता है. जैसे ही स्पर्म्स एंटर हो जाते हैं वो आगे तक जा ही नहीं पाते, वो वहीं डिजेनरेट हो जाते हैं स्पर्म्स. तो इसीलिए जो कॉपर टी है, कॉपर टी के कारण से Cu+2 आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सर्विक्स पार्ट में बहुत ज्यादा हाई रहता है. और कॉपर टी, फिर आप कहोगे यार मैम स्पर्मिसाइडल्स कॉन्डम्स का भी वही काम था, copper T का, then why the IUDs are so effective? IUDs are so effective because these are the surgical, inbuilt surgical. अगर IUD लगी हुई है, then the percentage of pregnancy or the conception is very low. For example, condoms can be fitted through the humans, ठीक है. अब कभी condoms लगाए कभी नहीं लगाए, so the overall rate will be not that much effective. But IUDs, if once affected, then 2 साल तक they can give you the same function. एक ही function perform करेंगे, but the silly carelessness mistakes will be very effective during की, मतलब carelessness नहीं होगी, एक fully flamed agenda achieve हो सकता है. So IUDs are once if inserted, they can't be taken out back before 2 years. और 2 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते हो जब तक एक आप ऑर्गेनाइज फैमिली प्लानिंग ना करो. सो IUDs इन दैट मैनर विल बी वेरी इफेक्टिव. जो लेटेस्ट IUD है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो कॉपर IUD कहते हैं. बहुत सारी और IUDs आई जिसे आप कहते हो, बहुत सारी गवर्नमेंट ने IUDs निकाली, कॉपर T20, कॉपर T, ठीक है, 7 से 10 साल की निकाली, 2 years अप टू निकाली. सो क्वेश्चन अराइज हो गए 3 मार्क्स के. They'll give you, they'll form a question like that, what are barrier methods, and explain the importance of IUDs and explain with the help of examples. तो अगर उन्होंने ये पूछा एग्जाम्पल्स में, तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज के नाम लिख के उनका ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन रोकने का इफेक्टिवनेस दे के फिर आपको उनका वो देना पड़ेगा कि कितने ईयर्स तक के लिए वो इफेक्टिव हैं, कितना टाइम, कितने ईयर्स के लिए वो इफेक्टिव है, और वो कब डिस्कवर हुए और कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाए या उनके क्या थे. सबसे ज्यादा कॉपर IUDs आर कॉपर टीज, एज कॉपर आयनाइज्ड diffuses the rate of some 50 ग्राम. और इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता इन IUDs लगाने के लिए. सो दैट्स व्हाई, ठीक. सो दीज आर द मोर इफेक्टिव, जिसमें स्पर्म्स मोर्टालिटी डिक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है. उसमें से आपके बहुत सारे हैं कॉपर T250, कॉपर T375 या 250 हो गया, 375, कॉपर 380, कॉपर
7 अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स की 7 से 10 साल के लिए लगवानी है या 2 से 5 साल के लिए लगवानी है। कॉपर 380A, कॉपर T 380A। ओके, हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीन ऑल्सो देयर। हार्मोन्स रिलीजिंग आयोडीन क्या करती हैं कि एक बार लगने के बाद बॉडी में से हार्मोन्स की इंड्यूशन कराती हैं, ठीक है। इंक्लूड प्रोजेस्टेरॉन आयोडीज, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा रहेगा, आयोडीज और लिवोनोजेस्ट्रिलॉल LNG20, ठीक है। अब अगर प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन released induces endometrial changes, induces endometrial changes and cause anovulation and insufficient luteal activity. Okay, so these are. Now let's talk about the oral contraceptives. Oral contraceptives are the periodic pills कि आपको हर रोज एक पिल लेनी है so that एक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, बेसिकली ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं ये हार्मोन्स होती हैं जो आप ओरली लेते हैं, ठीक है। दे आर preparations, you can say drugs containing progestin, that means progesterone, or in combination of both, progesterone and estrogen. प्रिपरेशंस ओरल सेप्टिव्स में बच्चे आ जाता है जो आपका 28 और 30 डेज का साइकिल फॉलो करती हैं। मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल डे पे यू विल स्टार्ट हैविंग, लास्ट मेंस्ट्रुअल डे पे द पिल्स, ये जो पिल्स होती हैं टेकन ओरली एवरी नाइट, ठीक है। इससे क्या होता है, दीज आर हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरू से ही बॉडी में हाई रहता है। ये नहीं कि सिर्फ 14th और 16th या 18th डे पे हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल शुरू से ही हाई रहता है। उस हाई लेवल के कारण से ओव्यूलेशन और ल्यूटेल एक्टिविटी इतनी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ प्रोवोक होती है, ना कि प्रेगनेंसी की तरफ, ठीक है। 21 डेज का पीरियोडिक साइकिल होता है, ठीक है। और 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होता है ये फिर, ठीक है। 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 21 to 28 डेज तक। कॉमन एग्जांपल्स आर फेमिनिनॉन, नॉर्मिलॉन, नोविलॉन, these are some of the examples, ठीक है। इन दौरान पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या कोइटस होता है
प्रेगनेंसी रेट 2% होता है। ओके, क्यों 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 होता है? ड्यू टू दिस help in keeping hormonal level required for contraception for prevention in contraception by following ways. By following ways कैसे रोकते हैं ये? Initiation, yeah, you can say inhibition of ovulation होने ही नहीं देते पहले तो, ठीक है। Alteration in uterine endometrium, ठीक है। Alteration, next you can transportation of sperms can be directed by cervical mucus, which is impaired, okay। Next you can say inhibition in motility of sperms, okay। So these are the ways where oral contraceptives are helpful in maintaining, then how the ways they are going to stop the contraception pregnancy। एक होते हैं बच्चे, हम लोगों ने शुरू में बात की थी, इंजेक्टेबल्स और इंजेक्शंस। जैसे इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं डायबिटीज पेशेंट्स में, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है। आर यूज्ड सिंगली, they are depot medroxy progesterone acetate DMPA 150 mg every day, okay, every 3 months, 300 mg every 6 months, okay। nor ethisterone enanthate 200 mg every 2 months, इंजेक्शन लगवा लो and the risk of pregnancy can be minimal। but इसको रिस्क क्या होता है? they are expensive होने के कारण और भी कि फीमेल्स it causes infertility,
इनफर्टिलिटी कॉज कर देते हैं मैनी पेशेंट्स में। ठीक है, तो उसके बाद कंसेप्शन फिर अगर फैमिली प्लानिंग की हो रही है तो हो नहीं पाती। द फीमेल यूट्रस will not able to concept or implant the zygote, and always the risk of pregnancy will be there, the risk of pregnancy termination will be there। ठीक है, emergency contraction, emergency contractions का मतलब क्या होता है कि ओके you have the during unsafe coitus, if there are unsafe coitus, then the oral contraceptives will be present, oral contraceptive, that is the very counter, over counter drugs are there, that is I pill, एग्जाम्पल्स में यू कैन ऐड द आई पिल। ठीक है, आई पिल, you have, you can also call them morning after pills। ठीक है, these can be taken orally by females, and after taking them, these are the strong dose of progesterone, and after that the risk of pregnancy can be minimized, but they can be taken within 3 to 4 hours after the unsafe coitus, 3 से 4 घंटे। और जितनी जल्दी आफ्टर द अनसेफ क्वार्टर्स द फीमेल विल हैव द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और दिस पिल, the minimal pregnancy rate risk will be lesser, and if the contraception अगर 12 घंटे हो गए हैं, the contraception rate will be around 80%, अगर 24 घंटे हो गए हैं the contraception risk will be 45%, और 2 दिन बाद ले रहे हो so it will be of no use, so don't waste your money over those drugs। okay, so these are the over the counter drug। ओवर द काउंटर ड्रग्स बच्चे वो होते हैं जो आपको किसी स्पेसिफिकली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, जैसे क्रोसिन हो गई, दीज ड्रग्स, सो दीज आर द ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट और भी बहुत सारी आई पिल्स हो गई, जैसे कि मिफ्प्रिस्टोन, अनवांटेड 72, वेरी द ओवर द काउंटर ड्रग्स which are available in every MCD dispensary। इसमें लिवेनोरोजिस्ट्रॉल ज्यादा होता है। ओके, 12 घंटे विद इन 12 आवर्स इसको कंज्यूम कर लेना होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सर्जिकल मेथड्स। अगर सर्जिकल मेथड्स की बात बोलूं तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से उठता है, 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं कभी, व्हाट आर द सर्जिकल मेथड्स या व्हाट आर द प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ दैट थिंग। ठीक है, दीज आर टर्मिनल मेथड ऑफ प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग। बेसिकली क्या मतलब है इस चीज का, टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, मतलब उसके बाद आप फैमिली कभी प्लान कर ही नहीं पाओगे। द कपल्स जिनके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं एंड दे आर नॉट वांटेड कि अब उनके आगे बच्चे हों एंड दे नॉट वांटेड टू एक्सटेंड द फैमिली फर्दर, दीज आर द मेथड्स फॉर देम ओनली। ठीक है, फॉर एग्जांपल दीज आर द परमानेंट मेथड्स जिनके बाद यू कैन एंजॉय, यू कैन हेजिली एंजॉय द सेक्सुअल लाइफ, and after that no at all risk of pregnancy by making changes in the reproductive organs। अब या तो उसमें हम लोग जो वेसिकल्स, सेमी वेसिकल्स, जो वासा डेफरेंस डक्ट्स हैं इन द मेल्स उसको कट कर दो या टाई कर दो, या फिर जो फलोपियन ट्यूब्स हैं जो ओव्यूलेशन लेकर आती हैं उनको कट करके या बांध दो। ठीक है, these are the permanent surgical methods which can't be overlaid after that, and the terminal methods for family planning, after that there will be no
देयर विल बी नो मेथड कि आप फैमिली प्लान कर सकते हो टू हैव द चाइल्ड अगेन, ठीक है। परमानेंट मेथड of family planning where there is no need of replacement or augmentation, but reversibility is poor. ऑपरेटिव प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं which block the passage of semen in males and ova in females. Okay. Vasectomy, the two methods, two operative surgeries are vasectomies and tubectomies. Okay, vasectomies and tubectomies. So let's differentiate in between surgical sterilizations of males, surgical sterilization of females. The two vast difference are interrupted by giving cuts or tied off. Okay, the two oviducts are interrupted by ligation or cuts. Passage of sperms are prevented. Passage of ovum or egg is prevented. नेक्स्ट, अगर मैं इसकी डेफिनेशन क्लियरली मेंशन करूं तो सर्जिकल sterilization of males, you can add at permanent. Permanent surgical sterilization of females. And the next second thing we're going to mention two vast difference interrupted
by cutting or tying passage of sperms is blocked, or you can rather say prevented. Two oviducts. Oviducts are known as fallopian tubes. Interrupted by tying or cutting. Okay. Passage of egg is prevented. Okay. So here is we have discussed the tubectomy and the vasectomy, and we have differentiated the two with one another, where these are the surgical barrier methods of contraception. In the next session, we are going to discuss the medical termination of pregnancy and the side effects related to the barrier methods, and what are the percentage which fail by these methods. ठीक है, कौन से मेथड्स थे कि क्या क्या इनमें हर्डल्स आए, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए इनमें, और इन ऑब्स्टेकल्स के कारण क्या क्या ऐसी चीजें हुई डेवलप जिनके कारण ये टेक्निक्स, ये जो मेथड्स हैं, ये फेल हो गए. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन द मेडिकल टर्मिनेशन एंड द declining side effects of these barrier methods. So keep revising. All the best. Good luck.